beginning with that. So, mental health is a universal human right. And I would love to ask you and just go into your subconscious time, or maybe when your parents were cooking. So, if you will close your eyes and just remember the best dish your grandmom, your granddad, or your mom or your dad have prepared for you, or anybody in your life who's very close to you. That's the art of culinary therapy. That you will always sever that flavor, and it is not that you have to eat it, it will come into your senses automatically when you think of them. And that's what you can do and use it as a therapy. On this World Mental Health Day on 10th October, you should know that what is the theme of this mental health day. It's mental health is a universal human right. It means that we all should be able to connect with the people, right people, to talk about it, even if you're facing something related to your mental health. And it could be, it's not that you have some kind of a problem. Understand that fact. We all face problems in day to day life, and suppose your dish has gone wrong. Suppose maybe you reached late for your exam. So we all face these problems. But if this become a pattern for you and you are not able to handle it, that's where you have to talk about it. That's where your journey starts. So it is not that when you have the extreme of stress or anxiety or maybe something, some people will tell you that, okay, this is not going right, you are not performing well. The moment you realize that I am not performing in the way I used to, in any which form in your life, that is where you have to start thinking about taking some help, talking about it at least. Help comes later, but first is that we should be able to talk about it. So, how many of you do that? You have to think on those. That I do you have some comfort zone where you can talk about it? Any safe space where you can? So, your mentors, your chef in the center, or maybe somebody who's elder to you. So, if you can talk to them about it, yes, and it has to be a conversation which should be easy to talk to. It's not that you have to go to a doctor or a psychiatrist or a psychologist. It is that we have to bring it. So that's why it is a universal human right that everybody should know that, okay, they can talk about it. There's nothing wrong in talking about it. And we should know that how, when, and where we have to talk about it. That's the only thing. So this mental health day, all of you will put in your centers that mental health is a universal human right. That is how you will start, and use the color green, because green ribbon is the color of the this theme. And you can put it on your side if you wish to, like on your shirts as a badge. You can create that, and that's how you are going to celebrate and talking about it. I'll further talk about that how you can do something, contribute to the society. Now I'll take you to something very beautiful, and if we can have the volume on here for all the students to see. uh, Water. Okay, the earth is made of 71% water, and we are also, some part of us is made of water. So water has memory, and this is an experiment, beautiful experiment done by Japanese scientists, which talks about the emotions. And when I am drinking water, or when water takes different shapes, when because of our emotions. And you will, I'll just play it and you can see that.
हाँ सही है। तुम्हारे हिसाब से सही है फ्रेमिंग इतनी? सही है सर, सही है। So if you have seen that पानी जैसी चीज जो कि 71% हमारे अर्थ में है, एंड दैट्स व्हाट आपको समझना यार पड़ेगा कि आवाज हमारी स्लो है, बॉडी आवाज तो में सही आ द जाएगी नहीं। एंटायर ह्यूमन बॉडी इज अबाउट मैं कह रहा हूँ 66% इसमें ना वाटर. आवाज स्लो आ रही है, Our मुझे bones सुनाई are पड़ रही है, composed of लेकिन सिस्टम आवाज तो तेज 22% आएगी ना। water, muscles 76%. जो भी लोग जिम जाते हैं, they should know. And blood is 83% made up of water, and rest of the things are minerals like iron, potassium, calcium. Now, lungs are 90% water, and our brains are actually 95% water. सो द थेरेपी स्टार्ट फ्रॉम हियर. जब आप पानी को आपने अगर देखा जापानीज एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने दिखाया कि आपके हर इमोशन की शेप जो होती है वाटर एक अलग शेप ले लेता है. तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है दिन में कि हम अपना जो पानी है उसको कहीं से भी अगर आप लेकर आते हैं, ऐसा कहा जाता है हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है ये बात कि जब आप पानी अगर आप कहीं से भी लेकर आते हैं तो उसको थोड़ा-सा रखिए, थोड़ी देर के लिए रखिए, उसके बाद आप उसको पीजिए, ताकि पानी की जो मेमोरी है वो आपकी मेमोरी जो आपकी आस-पास का एनवायरनमेंट है उससे कनेक्ट हो जाए, एंड इट हैज़ न्यू मेमोरी फॉर यू. Now you can understand that the power of water, and because it has memory, that's where the whole concept of culinary art therapy begins. It starts from there. नाउ culinary आर्ट्स के हमारे को फायदे क्या क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं. reduces anxiety and depression by providing a calming and enjoying activity. और बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी. कब आप में से बहुत सारे लोग जब सुबह आते हैं तो मम्मी आपके लिए खाना बना रही होती हैं, और जब कभी बहुत गुस्से में होती हैं तो आटे को पटक पटक के मारती हैं, और जब बहुत प्यार से, जब बहुत आराम से उनका मूड अच्छा होता है तो आटे को बड़े प्यार प्यार से गूंथती हैं. सो दैट इज व्हाट, सो इट एक्चुअली इन किचन आपके लिए हर तरह का, जब आप कूटते हो, आप कुछ ग्रेट करते हो, सो ऑल दीज एक्शंस आर एक्चुअली हेल्पफुल, आपको मदद करते हैं अपने इमोशंस को चैनलाइज करने में. और अगर आप नोटिस करोगे कि, और आप ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो अपने डेली डे टू डे सेंटर में जब आप करते हो तो कौन से सर का मूड अच्छा है, कौन से शेफ का मूड खराब है आज. तो जब आपको लगे तो आप उनसे बात कर सकते हो इस बारे में. And that is why it reduces anxiety and depression by providing a very calming and enjoying activity. तो जब एक इंसान अगर कोई किचन में काम कर रहा है या आपके कमर्शियल किचन में काम कर रहा है और आप देख रहे हो कि वो पटक पटक के चीजें मार रहा है, तो आप उसके पास जाकर उससे बात कर सकते हैं और मूड चेंज कर सकते हैं. क्योंकि मूड, जैसा मैंने आपको बताया कि वाटर हैज मेमोरी, एंड हम पानी को हर जगह यूज करते हैं खाने में. तो जिस इमोशन से आप खाना बना रहे हो, जिस इमोशन से आप उसमें सब चीजें डाल रहे हो, इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो, वो मैटर करता है. And that's why culinary art therapy is very very important part of it. And how you can benefit is how you're preparing it. That's the first step for all of us. Now, increases self esteem and feelings of accomplishment. जब हम सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, मान लीजिए खाने में कलनरी आर्ट का आपको सी भी नहीं पता है, लेकिन आप कहीं तो स्टार्ट करते हो. जब हमने ए बी सी डी सीखा या हमने किसी भी तरह की चीज़ को सीखने के लिए आपको ज़रूरी है दैट यू विल स्टार्ट इट, बिगिन समवेयर, एंड दैट्स व्हाट. सो जब आपको छोटी छोटी चीज़ें, इसीलिए जब आपको स्कूल में भी, अगर आप किसी भी स्कूल में आपके करिकुलम में दिस शुड बी देयर that once in a month you should go to a school, any school for that matter. Maybe it could be a school where students are learning. आप ऑर्फनेज में जा सकते हैं, आप किसी एल्डर एज होम में जा सकते हैं, जहाँ पर आप उनके साथ ये एक्टिविटीज करें. सिंपल एक्टिविटीज लाइक बेकिंग, maybe making a herbal tea, anything. So that's what will become a feeling of accomplishment. Means छोटी छोटी चीजें करके, जिनमें आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने हैं, आप किसी भी बच्चे का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं. एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द इंस्ट्रक्टर्स और द शेफ, दैट इफ यू सी दैट किसी बच्चे के अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो किसी भी इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन गलत कर रहा है, बार बार गलती कर रहा है, एग्जाम नहीं पास कर पा रहा है, चाहे वो किसी भी, चाहे कुकिंग का एग्जाम हो या इंग्लिश का एग्जाम हो या किसी और सब्जेक्ट का एग्जाम हो, तो दीज आर द वेज यू कैन. और जब आप काट रहे होते हो कोई चीज़, जैसे सब्जियां काट रहे हो या कुछ बेक कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारी आपकी जो
फॉर्मल स्किल्स जो होती हैं वो यूज़ हो जाती हैं, एंड मोटर स्किल्स स्पेसिफिकली, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है, एंड देन यू सडनली आप अपना जो थॉट प्रोसेस है उससे अलग हो जाते हो। मतलब आप जिस जिस आप सोच रहे हो कि अच्छा मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ से हटकर आपकी कंसंट्रेशन आपके खाना बनाने पे चले जाती है, जब आप बातचीत करते-करते धीरे-धीरे अपने स्टूडेंट को एक उस तरफ ले जाते हो जहाँ पर वो आराम से कॉन्फिडेंटली छोटे-छोटे काम कर सकता है। तो अगर कभी भी नर्वस हो, तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। पिक अप वन एक्टिविटी व्हिच यू रियली लाइक, कि आप इसको कर सकते हो और जो आपको बहुत पसंद है, चाहे वो सिंपल एक आइसिंग हो केक के ऊपर, कुछ भी हो, तो वहाँ से आपको कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, एंड देन यू विल हैव अ फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, बिकॉज़ हम सबको, एनीवन इन ऑन दिस अर्थ कैन से दैट ओके आई एम द बेस्ट, बट स्टिल you need the kind of compliments, you need the admiration from people, and that is where your journey for self esteem starts. Now promotes mindfulness and being present in the moment. As I said, माइंडफुलनेस इज जब आप खा रहे हो, बना रहे हो, या इवन पानी भी डाल रहे हो, तो वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है कि इन हेयर एंड नाउ। आप घर से लड़कर आए हैं, छोड़ दीजिए वहाँ पर, उस बात को वहीं पर छोड़ दीजिए। जब ऑफिस में आए हैं, जब आप शेफ बने हैं, या आप यहाँ पर सेंटर पे काम कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट और एज अ शेफ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। And being present in the moment means here and now. You have to forget about past, you have to forget about future, कि आगे क्या होगा, कि मेरी डिश अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, ये भी नहीं सोचना है। सिर्फ अपना कर्म करना है, जैसा कि गीता में भी लिखा हुआ है कि अपना कर्म करते रहिए। नाउ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप सिर्फ पानी डाला आपने एक इंटेंशन से, आपने इंग्रेडिएंट्स डाले इंटेंशन से, आप आगे 10 लोगों को वो खाना खिला पाए। तो आपके इमोशंस, आपकी इंटेंशन, आपकी एनर्जी वहाँ पास हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक अच्छे मन से खाना बनाएंगे, एक अच्छे इंटेंट से खाना बनाएंगे, किसी को खुश करने के लिए, किसी का अगर मूड खराब है, अगर आप कुछ भी अच्छा सा खा लेता है तो उसका मूड ठीक हो जाता है, बिकॉज हमारी सेंस ऑफ विजुअल, देयर आर टू थिंग्स। जब आप कहीं पर भी खाना के अगर आपका मन होता है खाने का, तो आप सबसे पहले या तो विजुअल देख के अट्रैक्ट होते हैं, या फिर स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं। तो इन दो चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि जब भी आप इस आर्ट थेरेपी, कुलिनरी आर्ट थेरेपी की बात करेंगे, तो विजुअली आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, और उस टोटल डिश की फ्रेग्रेंस, जो उसकी स्मेल है, वो कैसी है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपने मास्टरी कर ली, सो यू आर अ गुड थेरेपिस्ट, बिकॉज दैट्स व्हाट वी कनेक्ट विथ। कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी फैमिली के अंदर भी अगर कोई इवन समथिंग हैपन्स, ओके, दे कनेक्ट ओवर फूड, एंड दैट इज व्हाट। सो आप आज आज भी आप अपने घर पे जाते होंगे, अपने पिंड में जाओगे, तो आप अपनी दादा दादी के खाने की बात याद रखोगे कि हाँ, उन्होंने मुझे बचपन में ऐसे खाना खिलाया था, या ये स्पेशल डिश खिलाते थे, मुझे वो आज भी याद है। और जितने भी अच्छे शेफ्स हैं अगर आप देखोगे, तो वो अपने ही ग्रैंड पेरेंट्स की कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने खाने में लेकर आते हैं, एंड वो उस चीज़ को स्वाद बनाता है, बिकॉज आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, या आपके किसी बुजुर्ग ने उस खाने में इतना अच्छा इंटेंट डाला था, इतने अच्छे इमोशंस डाले थे, कि वो आज भी उनको याद रहते हैं। सो दैट इज द बेनिफिट और पावर ऑफ culinary आर्ट थेरेपी। नाउ एग्जैक्टली क्या होता है culinary आर्ट थेरेपी में, कि जब इट्स अ क्रिएटिव अप्रोच, जहाँ पर आप कुकिंग और थोड़ा बहुत साइकोलॉजी को याद रखते हुए, यू प्रमोट मेंटल एंड इमोशनल वेलनेस, एंड लर्न हाउ फूड अफेक्ट्स मूड, एज आई शोड टू यू। जब आप, कि वाटर के भी इमोशंस हो सकते हैं, जब वाटर एक शेप ले लेता है आपके इमोशंस की, तो इमेजिन कीजिए कि फूड किस तरह की शेप लेता है। जब हम कलर्स की बात करते हैं, या मसालों की बात करते हैं, तो आप कलर्स देख के ही आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हो कभी कभी, कि अच्छा, दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, योर ओन क्रिएशन ऑल्सो। सो दैट इज वॉट culinary आर्ट थेरेपी इज, इट्स अ वेरी क्रिएटिव अप्रोच, एंड सम ऑफ द साइंटिस्ट अराउंड और साइकोलॉजिस्ट अराउंड, दे आर डूइंग सर्टेन वर्क विच यू कैन फाइंड ऑन गूगल एज वेल, कि वो क्या-क्या इसमें काम कर रहे हैं अभी, जहाँ पर उन्होंने फैमिली कुकिंग, बच्चों को बचपन से सिखाना कि छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं कुकिंग की, बेकिंग की, आप साथ में कैसे कर सकते हो। तो उनको ये छोटे-छोटे चीज़ें ही, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू डू थेरेपी व्हेन यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ एन इश्यू और कंसर्न और प्रॉब्लम। इट्स अबाउट ब्रिंगिंग थिंग्स इनटू योर डे टू डे रूटीन,
एज सिंपल एज जब आप सुबह उठ के ब्रश करते हो, अगर हम एक मील हफ्ते में सब मिलके इकट्ठे बनाएं और सब कोई अपना अपना एक्सपर्टीज लेकर आएगा, तो दैट इज व्हाट आल्सो इज culinary आर्ट थेरेपी। तो जब आप एज अ शेफ आपके सेंटर्स पे जब आप ये काम करते हो, तो कभी अपार्ट फ्रॉम जो आपके सेंटर में बनता है, किसी की हर एक की एक स्पेशल डिश बनाने की स्पेशलिटी होती है, तो आप उसको बोले कि आप वो लेकर आएगा बना के, एंड देन यू शुड हैव कम्युनिटी लंच और मे बी buffet lunch or something like that. Now, how it works? So, culinary art therapy combines cooking with therapy to promote overall wellness, as I said. So, it could start from simple fruits. आप किसी भी इंग्रेडिएंट्स को, किसी भी वेजिटेबल को, किसी भी फ्रूट को यूज कर सकते हैं, और इवन स्क्वीजिंग एक्टिविटी लाइक स्क्वीजिंग on an orange or maybe cutting an apple in different ways, आप कैसे डेकोरेट करते हो, so that also works like a therapy to promote overall wellness. Now, cooking can be creative outlet and a way to reduce stress and anxiety. जब किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि उससे जस्ट एग्जाम से पहले, या आपका एक ओरल इसका एग्जाम है कुकिंग का, और आपका कोई फ्रेंड जो है या आपका कोई क्लासमेट है जो नहीं कर पा रहा है, देन यू कैन यूज दिस इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। सो दीज आर द सिंपल क्रिएटिव आउटलेट्स कि अच्छा उसको जो भी पसंद है, आप उसको जस्ट, आपको करना क्या है, ध्यान बटा अलग करना है उसका उस चीज़ से। हम जिस चीज़ को सोचते हैं उसी से ही हमारे एक्शंस होते हैं। तो अगर हम सोचेंगे नहीं, अगर हमने अच्छा सोचा है तो अच्छा होगा डेफिनेटली। तो हमारी सोच जो है, या थॉट है, या फीलिंग है, उससे ही हमारे एक्शंस आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी आप इस चीज़ को, इट्स कॉल्ड अ टीएफए साइकिल। सबसे पहले आपके माइंड में थॉट आता है, अगर आप सुबह 5 मिनट लेट हो गए हैं अपने एग्जाम के लिए या अपने सेंटर के लिए, सबसे पहला थॉट आएगा कि मैं लेट हो गया, फीलिंग स्ट्रेस की, और फिर एक्शन होगा। उस वजह से आपके रिपल इफेक्ट होते हैं कि आप 5 मिनट, 5 के 10 मिनट हो जाते हैं, 10 के 15 मिनट हो जाते हैं। सेम थिंग हैपन्स कि अगर आज आपको, आप बाहर निकल रहे हो घर से, और मम्मी या पापा ने आज बोला, कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आपके अंदर थॉट आया कॉन्फिडेंस का, फीलिंग आई और अच्छा दिखने की, एंड एक्शन दैट यू विल एवरी डे यू विल स्टार्ट डूइंग दैट। अच्छा, दिस कॉम्बिनेशन लुक्स गुड ऑन मी। सो सेम थिंग गोज विद फूड ऑल्सो, कि जब खाने की बात करते हैं तो आपको खाने का, कभी भी खाने के लिए चाहे कितना थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो या मसाले ज़्यादा हो, कोशिश कीजिए कि जो बना रहा है उसके इंटेंट को समझें, और शुरुआत करें तारीफ से थोड़ा सा। दैट इज़ वॉट यू हैव टू डू। उसके बाद आप जितना, जो उसके अंदर कमियां हैं अगर वो बताएंगे, तो ये कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर आ जाएगी एज अ शेफ ऑल्सो। ऑलवेज स्टार्ट की उसके अंदर जो डिश बनी है उसके अंदर अच्छा क्या लग रहा है, दैट्स दैट्स विल हेल्प। एंड आफ्टर दैट यू कैन टेल कि हाँ, अगर ये थोड़ा सा नमक कम होता या थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा होता, तो उस पर्सन में जो आपसे सीख रहा है या आपसे, जो आप जिसको सिखा रहे हैं, दोनों में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मैं इन टीचर के पास जाऊंगा तो मुझे इस तरह का फीडबैक मिलेगा। लेकिन आप शुरू में ही किसी की डिश को रिजेक्ट कर देंगे, और हम लोग करते हैं अक्सर फैमिली के टाइम में, सुबह सुबह ही किसी मम्मी ने बड़े प्यार से खाना बनाया है, या घर में कोई भी आपके कुक कर रहा है, आप फटाफट से उसको रिजेक्ट कर देते हो, जबकि वो 1 घंटा, सवा घंटा या आधा घंटा भी लगाते हैं खाने के अंदर, सुबह सुबह उठ के आपके लिए पैकिंग करते हैं। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा, अगर हम इनको कम्युनिकेशन को कलनरी में ले आएंगे, तो दैट्स व्हाट द थेरेपी, इट विल बिकम इटसेल्फ अ थेरेपी, द वे ऑफ टॉकिंग विल बिकम अ थेरेपी। Now, the act of cooking and sharing a meal can foster social connections and improve mood. So, कल जब आप इस मेंटल हेल्थ डे को सेलिब्रेट करेंगे, तो आपको सिर्फ ये करना है कि आप किसी भी अपने आसपास के सेंटर के आसपास एक ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ पर मे बी बुजुर्ग हों, और उनसे पूछे कि वो कौन सी डिश उनकी पसंद की है, और वो उनके साथ जाके मिलके बनाएंगे। तो दैट इज़ हाउ यू कैन सेलिब्रेट मेंटल हेल्थ डे विद देम, और उनकी मेमोरी में रहता है। आप चाहे किसी को भी भूल जाएं, अपने रिलेशंस भूल सकते हैं, लेकिन आप खाना कभी नहीं भूलते। That is a truth of our life. And that's how the culinary art therapy works for all of us. Now, example of recipe for curing stress and anxiety, ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, बिकॉज इसके ऊपर आप 4 घंटे की एक वर्कशॉप कर सकते हो, जहाँ पे आप ट्रेनिंग करते हो लोग शेफ्स की या बच्चों की जो कि कलनरी आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, और जो कलनरी आर्ट में इंटरेस्टेड भी नहीं।
चॉकलेट, जो डार्क चॉकलेट होता है या चॉकलेट इन जनरल, उसका जो स्मेल है वो आपको एक तरह से कॉफी एंड चॉकलेट, when you inhale it makes you very relaxed and sometimes so that also carries emotions, a lot of emotions. तो अगर आप चॉकलेट थेरेपी की बात करेंगे तो आजकल लोग अगर चॉकलेट फेशियल भी करवाते हैं, चॉकलेट मड थेरेपी भी होती है, तो दिस इज वाई बिकॉज उसके इंग्रेडिएंट्स या उनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो आपके इमोशन से बहुत अच्छे से रेगुलेट कर सकता है. That is why these are some examples to reduce stress and anxiety. Because why I'm talking about stress and anxiety, because 90% of the population, world population, in some form, चाहे वो थोड़ा हो या बहुत ज़्यादा हो, स्पेक्ट्रम है 10% से लेके 90% तक का या 100% तक का, वी ऑल हैव स्ट्रेस एंड एंजाइटी. some people can deal positively with stress, some people cannot. So that's why अगर आप, और क्योंकि हम दिन में 4 मील लेते हैं, 2 स्नैक्स मील्स लेते हैं, तो आप सोचिए कि अगर हम इसको, इस थेरेपी को अपनी culinary आर्ट में इन्वॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए कितना एक आप कितने accomplished शेफ बन सकते हैं. दैट इज वॉट. एंड यू कैन हैव थीम सेलिब्रेशंस एवरी मंथ. आपको मेंटल हेल्थ डे पे ही सिर्फ नहीं करना है, यू कैन हैव एवरी मंथ वन डे यू कैन डेडिकेटेड कि हम इस कम्युनिटी के लिए काम करेंगे. और उस, क्योंकि जब आप किसी को देते हैं तो आपको अपने आप भी एक अच्छा सी फीलिंग होती है, एक अच्छा इमोशन आता है कि अच्छा ठीक है, मेरी कैपेसिटी में जितना था मैंने वो कर दिया. अच्छा, तो दैट इज व्हाई, एंड दिस इज व्हाट वी डू इन बसिक रहा आल्सो, एज आई मेंशन. नाउ, टिप्स फॉर माइंडफुल ईटिंग. हम दूसरों को तो अच्छा खाना खिला सकते हैं, लेकिन हमें खुद भी अच्छा खाना खाना ज़रूरी है. इसीलिए माइंडफुल ईटिंग मीन्स आप जो भी खा रहे हो, सेंसेशन, फ्लेवर्स ऑफ ईच बाइट. और जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि आप एक बाइट को 32 बार चबाएंगे. अब वो 32 दांतों से रिलेटेड है या नहीं है ये मुझे नहीं मालूम है, बट दैट इज व्हाट दे से कि आप अगर 32 बार उसको चबाते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है. इट ऑल्सो मीन कि आप बहुत जल्दी जल्दी गल्प नहीं कर रहे हैं. एंड माइंडफुल ईटिंग इज ऑल्सो कि आप अपना जो खाना है उसको एंजॉय कर रहे हैं. यू आर लुकिंग एट द इंग्रेडिएंट्स, कलर ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, स्मेलिंग देम. सो आपकी जो पांचों सेंसेस हैं उनको भी इवोक करने की ज़रूरत होती है कि आप उनको अवेयरनेस के साथ खा रहे हैं. So slow down, savor your food, and chew thoroughly to aid digestion. There is another whole scientific research going on. और अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे आज के टाइम में देखेंगे तो गट हेल्थ के बारे में बहुत बात होती है. And gut health is directly related to mindful eating, and it has a mind body connection. जिसको अगर ज़रूरत होगी तो I may take another session for that. But it is very important for people to know कि आप कौन सी एज में क्या खा रहे हो जो आपके गट को नॉर्मलाइज करता है, कि आपकी आपकी गट हेल्थ को एकदम पॉजिटिव रखता है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अब इसको आपको अगर नहीं मालूम है तो एक तो हमारा ब्रेन यहाँ है. सेकेंड ब्रेन इज योर belly brain, which is related to gut health. So mind body connection, gut health, gut mind connection is very important हमारे लिए. It's not science, it's just not science, it's about everybody to know about their body. कि अगर हम मॉर्निंग में सिर्फ एक ग्लास पानी पीते हैं तो क्यों पीते हैं. आई डोंट नो कहाँ पे मैंने किसी सेशन किसी उसमें सुना था या कहीं पढ़ा था कि पुराने टाइम में नमक और इमली को इकट्ठे रखा जाता था किचन्स में. अब उसका रीज़न क्या है, दैट्स व्हाट यू हैव टू फाइंड, एंड यू कैन कम बैक टू मी कि मैम दिस इज़ व्हाई वी हैव केप्ट. बट देयर वाज अ रीज़न फॉर एवरीथिंग कि आपके किचन्स कैसे डिज़ाइन होते थे, कौन से बर्तन में कब क्या पकेगा, चाहे वो तांबे का हो या स्टील का हो. स्टील तो बहुत बाद में आया कि वुड के अंदर हो या लोहे के अंदर हो. और ये सब चीज़ें कलनरी आर्ट में अगर आप इस चीज़ को वापस ले आते हैं अपने अपने तरीके से, अपने उसमें शेफ में, तो आपके लिए then you can become something very unique flavored you can add to it. So that is what is mindful eating also.
फॉर योरसेल्फ एंड प्रिपेयरिंग समथिंग जो आपके आप जिनको खिला रहे हैं उनके लिए भी, उनको भी थोड़ा सा, अगर हम मान लीजिए कोई हम कम्युनिटी लंच कर रहे हैं, तो अगर उनको आप 5 मिनट का या 2-3 मिनट का एक अच्छा सा मज़ेदार मतलब ह्यूमरस वे में अगर आप ये सब बता देंगे कि माइंडफुल ईटिंग क्या होती है या कलिनरी आर्ट क्या है, तो आप कनेक्ट हो जाते हो फूड से खाने के लिए। देन यू पे अटेंशन कि आपके सामने क्या है। वरना आप जितनी भी मैरिजेस में जाते हैं या पार्टीज में जाते हैं, आप सिर्फ स्टॉल्स देखते हो, यू डोंट ऑब्जर्व कि उसके अंदर कलर क्या है, क्योंकि अब लोगों ने वो भी करना छोड़ दिया। सिर्फ 5 स्टार होटल्स के अंदर या कहीं पर आप जाते हो तो आपको एक प्लेट बहुत सुंदर सी डेकोरेशन मिलेगी, पर वहां पर आपके पास टाइम है। वरना मैरिजेस में पार्टीज में जब आप जाते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आपने देखा कि अच्छा ये चाट का स्टॉल है, यहाँ खाना है, फटाफट से खाया और दिस इज नॉट माइंडफुल ईटिंग। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टिप्स फॉर माइंडफुल ईटिंग कि आप जब भी प्लेटर आप डेकोरेट कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो कहीं पर, उसके उसमें आपने कितनी अटेंशन की है, डिटेल टू अटेंशन, सो दैट इज व्हाट विल मैटर। As I said, the mind body connection, there's a strong link what we eat and our mental health. अगर अगर इस चीज़ को अगर हम समझ लेते हैं तो ओबेसिटी की प्रॉब्लम जो है, जो मोटापा है, वेट गेन है या स्ट्रेस है, एक्ने है, बॉडी की रेगुलेशंस हैं, ये सब बिकॉज ये सब खाने से होता है। और आप ये नोटिस करो कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हो तो आप वही फूड उठाते हो जो आपको बहुत पसंद है। आप पिज़्ज़ा खा लोगे, 2 पिज़्ज़ा खा लेंगे, चिकन खा लेंगे, मतलब आपको ये समझना है कि जब हम खा रहे हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो दैट्स इज माइंड बॉडी कनेक्शन। नाउ न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट ऑन ब्रेन फंक्शन एंड मूड। आप जो भी इंग्रेडिएंट उसमें डाल रहे हैं अपने खाने में, उस इंग्रेडिएंट का क्या आपको न्यूट्रिशन वैल्यू पता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन न्यूरो ट्रांसमीटर्स एंड देयर रोल, कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी हम खाना खा रहे हैं या हमारे सेल्स हैं उसमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, वो मैटर करता है। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स इट्स मोर ऑफ अ ब्रेन फंक्शन, तो उस पर मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगी, लेकिन आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि जो गट हेल्थ होती है हमारी, उसमें कम से कम 1 मिलियन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारी बॉडी से, हमारे बेली से हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं, एंड दैट्स हाउ योर बॉडी फंक्शंस। तो इसीलिए सबसे पहले अगर कोई बेहोश होता है तो उसको क्या दिया जाता है, ग्लूकोज, बिकॉज उसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, जिनकी कमी है, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक सिंपल चीज़, नमक जैसी चीज़ अगर आप अप्रोप्रिएट उसमें डालेंगे क्वांटिटी में, तो इट कैन बी अ ब्लेसिंग। बट इफ समबडी इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, उसके लिए इट कैन नॉट, इट विल बी अ कर्स। सो देन इफ यू अंडरस्टैंड, और आगे आने वाले टाइम में इट विल हैपन दैट पीपल विल गो टू दोज रेस्टोरेंट्स जो आपके जेनेटिक स्टाइल के हिसाब से आपको खाना प्रोवाइड करते हैं। यू कैन सी, जब घर पे खाना बन रहा था, जोमेटो पे खाना बन रहा है, अब जोमेटो पे आ जाता है आजकल। देन द थर्ड थिंग इज कि आपको आजकल फूड दर्जी जैसे एप्स मिलेंगे जहाँ पर आप अपना न्यूट्रिशनल मील्स बना सकते हो। तो ये चीज़ें आपको, क्योंकि इफ़ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि आपकी कम्युनिटी में जहाँ पर लोग हैं वो कितना खाना उनका ऐसा है जो किस तरह का खाना खा रहे हैं। कि अगर आप सी के पास रह रहे हो, आप पहाड़ों में रह रहे हो, हर जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन से भी खाने का रिलेशन है। तो उसी हिसाब से आपको वो थेरेपी अपनी डिज़ाइन करनी होगी। Now, some of the techniques for culinary therapies. Now, if you can see at this plate, how beautiful does it look? वेरी सटल, बहुत सिंपल कलर्स हैं। अब इसमें अगर हम अपने इंडियन उसके हिसाब से देखेंगे तो हमने हार्डली कुछ भी इसमें प्लेट में कुछ खाने जैसा नहीं लगेगा, लेकिन इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इज़ वेरी हाई। और ये चीज़ें आप जितना ज़्यादा ट्रैवल करोगे उतना उतना ही आपको समझ में आएगा कि किसी एक प्लेट के अंदर अगर 4 इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, सो इफ यू विल सी द ग्रीन पार्ट ऑफ इट, इट इज़ अ हर्ब व्हिच हैज़ बीन एडेड। There's a salmon fish which has been just sauteed with a proper this, and then there is a crisp chips on it, so, and sugar, and some this
लिक्विड विच हैज बीन एडेड टू इट. सो द बैलेंस आपको एक, अगर इस प्लेट में आप देखेंगे तो बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शन नजर आएगा हर चीज़ का, इंग्रेडिएंट्स का, कि अगर आपको किसी भी मील के अंदर आपको सॉलिड, लिक्विड और पल्प खाना है तो कैसे है. तो हमेशा आप देखोगे हर्ब एक किसी भी डिश में बहुत ज़रूरी है ऐड करना. जैसे हम सिंपल धनिया ऐड कर देते हैं, बट देर आर मोर देन जस्ट कोरिएंडर लीव्स टू ऐड. एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू लर्न कि culinary थेरेपी की टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं. तो माइंडफुलनेस वाइल प्रिपेयरिंग एंड ईटिंग फूड, कि जब आप बना रहे हैं तो भी आपको अपना माइंडफुलनेस रखनी है कि मैं किसके लिए बना रहा हूँ, कि आज ये डिश कौन से एज ग्रुप के लिए है मान लीजिए, या मेरा गेस्ट जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं. हम सम पीपल लाइक लॉट ऑफ चिली, लॉट ऑफ स्पाइसेस, हॉट स्पाइसेस, सम पीपल डोंट लाइक इट. सो जितना ज़्यादा आप अपने कस्टमर को पहचानेंगे, चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशंस का हो या जहाँ पर आप खोल रहे हैं अपना रेस्टोरेंट, ये वहाँ पर भी काम आता है. देन कुकिंग एज अ फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन. Now, there are certain places in Rajasthan and in Europe as well, जहाँ पर आपको सिर्फ वहाँ पर वो ट्रेनिंग क्या देते हैं, एंड दिस इज़ इन इस्तांबुल एज वेल. जहाँ पर मैं जब गई तो वहाँ पर मैंने नोटिस करा कि उन्होंने सिर्फ मसालों को, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ग्राइंडिंग, एंड उनको कैसे, आपको कैसे अपना डिश बनानी है जो भी आप बनाना चाहते हैं. सो यू हैव ऑप्शंस देयर कि आप कौन सी डिश बनाना चाहते हो, जो भी आप कंफर्टेबल हो. वो चीज़ को उन्होंने एक टूरिज्म अट्रैक्शन बना लिया है, एंड दे आर चार्जिंग वेरी हाई फॉर दैट. बट द एक्सपीरियंस, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, हम पैक्ड मसाले यूज़ करते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं किसी से भी कि हरी इलायची जो है, छोटी इलायची, वो कैसे उगती है, कहाँ उगती है, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा. तो cooking as a form of relaxation could be starting organic farming and hydroponic farming, which is very beautiful. So आपके आसपास, सेंटर के आसपास कहीं पर भी जगह है, you should start this, the hydroponic farming, which is आने वाले टाइम में साइंटिफिकली इट विल बी वेरी बेनिफिशियल. ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद ये नेक्स्ट स्टेप है, जहाँ पर आजकल आप देखोगे तो सीडलेस क्यूकम्बर मिल जाता है. तो वो चीज़ें, बिकॉज वो आप पूरा प्रोसेस कर रहे हो, यू अंडरस्टैंड कि आपका कोई भी इंग्रेडिएंट कहाँ से आ रहा है, और कहाँ उसको हम इवन गार्बेज भी कर सकते हैं, लिटर भी कर सकते हैं, कि कहाँ हमें उसको डालना है जब हम उसको फेंक रहे हैं, उनके सीड्स को कैसे यूज़ करना है. जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं, दे आर ऑल बायोडिग्रेडेबल, मीन्स उनको, क्योंकि अर्थ से ही उग के आते हैं तो अर्थ में ही समा जाते हैं. तो ये चीज़ें अगर हम इस पूरे प्रोसेस को किसी भी शेफ को समझा देंगे, अपने शेफ सेंटर्स जो आपकी ये नैनोसियाई के सेंटर्स हैं, उसमें अगर आप इंट्रोड्यूस भी कर देते हो एक पूरा सर्कल, तो यू नेवर नो कि आपके कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे. एंड स्पेसिफिकली पंजाब, हिमाचल, या जिस भी जगह से आप हैं, बनारस है, यहाँ पर हर तरह का फूड का एक अपना कल्चर है, और एग्रीकल्चर फार्म बहुत सारे हैं. तो यू कैन थिंक ऑफ दैट कि आप अपनी तरह, अपने से ही जो एग्रीकल्चर है वो लेकर आ रहे हो, एंड देन यू आर डूइंग. एंड व्हाई आई कॉल इट culinary थेरेपी टेक्निक्स, बिकॉज जितना प्योर आपके इंग्रेडिएंट्स होंगे, उतना ही ब्यूटीफुल, उतना ही फुलफिलिंग आपका खाना होगा. सो यू आर कंप्लीटिंग अ साइकिल फॉर अ ह्यूमन बीइंग. So that's what is, it's cooking or farming is a form of relaxation. Then social interaction during cooking and dining. और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी मूवी भी है, मे बी आई सेंड इट टू यू. बट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि किसी भी शेफ को या किसी भी इंसान को जब कॉर्पोरेट उसमें काम करते हैं, उनकी मोस्टली मीटिंग्स डाइनिंग उसमें होती हैं, डिनर के टाइम पे, या किसी लंच के टाइम पे, या खाने के टाइम पे. क्योंकि आप अगर खाने से कनेक्ट कर रहे हो और आप उनको एक अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाते हो, तो डील्स या तो क्रैक होती हैं या पूरी होती हैं बिकॉज ऑफ दिस. तो आपका सोशल इंटरेक्शन, बिकॉज यू आर फीडिंग योर सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो. तो वहाँ पर आपकी जो, एंड इट्स द एनवायरमेंट, इट्स द एम्बियंस विच मैटर्स. सो कॉर्पोरेट डील्स जो होती हैं वो जनरली आप देखोगे इट्स ओवर द डिनर टेबल whenever they have to finalize something. So that is also, अगर आपको किसी से कुछ काम करवाना है तो उसको अच्छा सा खाना खिला दीजिए, वो हमेशा आपको याद रखेगा और आपकी डील भी शायद हो जाएगी. So that is what social interaction during cooking and dining happens. Now I'll take some examples जो आप लोग शायद अपने चाइल्डहुड से, शायद अपने यंग उसमें आप रिलेट कर सकते हो. दिस इज, आई हैव चेंज द नेम्स हियर. Sophie struggled with severe anxiety.
उसको बहुत एंग्जाइटी, बहुत एंशियस हो जाती थी कि लोगों से बात करना, लोग जब बहुत सारे, और एंग्जाइटी सिर्फ एक तरह की नहीं होती, एंग्जाइटी कुड बी फ्रॉम एनीथिंग। जब आपके सामने बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, मैथमेटिक्स की एंग्जाइटी हो सकती है। जब आपके सामने कोई दूसरा ऐसा हो जो आपकी लैंग्वेज जिसको आपको ना समझ में आती हो, आप वो यूज़ कर रहे हो, तो आप एंग्शियस हो जाते हैं कि आप उनसे इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप लैंग्वेज यूज़ नहीं कर पा रहे हो। खाने के लिए आप जो भी चीज़ें हैं आपके आस-पास में, अगर जब के एग्ज़ाम्स होते हैं या सर ने कुछ और कॉन्टिनेंटल बोल दिया, मुगलई बोल दिया, यू आर नॉट वेरी गुड एट दैट, यूरोपियन बोल दिया। सो दैट इज़ व्हाट, सो एंग्शियसनेस और एंग्ज़ायटी कहाँ से आती है, वो उसके रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं साइकोलॉजिकली, बट उसको हमें चैनलाइज़ करना कैसे है, उसकी एंग्शियस एनर्जी को कैसे आप उसे कुकिंग में कर सकते हो। तो ऐसे लोगों को अगर आप रिपिटेटिव रिदमिक एक्शन ऑफ चॉपिंग, स्टरिंग एंड बेकिंग, क्योंकि चॉपिंग से आपकी सारी जो हाई एनर्जी है, जिसे हम एंग्री इमोशंस कहते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। स्टरिंग बिकॉज़ यू आर यूजिंग योर मोटर स्किल्स, तो आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स हो जाता है। आप कोशिश भी करते हो। बेकिंग हम लोग को देख के लगता है, जब हम देखते हैं कि अच्छा बहुत ईज़ी है, लेकिन यू ऑल विल नो कि बेकिंग में इतनी सारी, अगर एक भी चीज़ आपने इवन रैपिंग अगर गलत तरीके से किया, तो आपका जो डिश है वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो वो छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देना, और कुछ भी अच्छा लग सकता है किसी को भी। तो अगर आपको ये नोटिस करना है कि सिर्फ़ एक मैच करना है कि उनकी एनर्जी कितनी है, एंग्शियस है, किस तरह की एनर्जी है, और आप उसको चॉपिंग, स्टरिंग और बेकिंग में यूज़ करके कामनेस और कंट्रोल, एंड दिस हैज़ बीन डन। ये सारे जितने भी केस स्टडीज़ आपसे 1-2 मैं डिस्कस कर रही हूँ, वो यही है कि ओवर टाइम दिस थेरेपी हेल्प्ड हर मैनेज हर एंग्जायटी मोर इफेक्टिवली। इट्स नॉट कि आपकी एंग्जायटी एकदम खत्म हो जाएगी, बिकॉज़ इट्स रिलेटेड टू योर बायोलॉजिकल साइकिल आल्सो, कि आपके कुछ टाइम, मतलब कुछ समय कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके हार्मोन्स बहुत डिफरेंट उसमें प्ले करते हैं। तो उनके लिए एंगर मैनेजमेंट, एंग्जायटी मैनेजमेंट ईज़ी हो जाता है, अगर हम उनको किसी भी एक ऐसी एक्टिविटी से कनेक्ट करवा देते हैं। एंड स्पेशली इन culinary art, दीज़ आर द फ्यू एक्टिविटीज़, बिकॉज़ यहाँ आपको किसी को आप किसी और के लिए परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हो। और सब्ज़ी अगर आपने चॉपिंग भी कर रहे हो, गलत भी काट दी, लेकिन आपकी एनर्जी यूटिलाइज़ हो गई, सो इट वोंट मैटर। Then second, this one is a beautiful case of a student who was suffering from autism. Now autism में आपने, you have seen lot of movies, कोई मिल गया, और there are many like My Name is Khan. So ये वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं जिनको, एंड इट कुड बी अ स्पेक्ट्रम ऑन इट। सो culinary आर्ट थेरेपी इसमें ग्रुप सेटिंग्स में इनको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज ऐसे लोग जो लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कुकिंग और बेकिंग कुड बी अ मीडियम टू कन्वे देयर इमोशंस। सो उसमें कुकिंग सेशन से उनके एसेंशियल सोशल स्किल्स की, आपको किसी से कैसे बात करना है, बूस्टिंग देयर कॉन्फिडेंस एंड फॉस्टरिंग फ्रेंडशिप्स की आप, क्योंकि जो लोग ऑटिज्म से सफ़र करते हैं, उनको थोड़ा-सा सोशल स्किल्स में कि आपको किसी से इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करने हैं, उनको नहीं पता होता है। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि बहुत एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम पे हो, ये छोटी-छोटी चीज़ें हमारे अंदर भी होती हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप चाहते हो लोगों से बात करना, आप किसी पार्टी में गए हो वहाँ पे, लेकिन आप वो कॉन्फिडेंस नहीं बना पाते हो कि कैसे शुरुआत करूँ। तो वहाँ पे ये सब जो सोशल स्किल्स आप ये वाली कुकिंग सेशन से आप सीख सकते हो कि अच्छा, यू कैन बॉन्ड ओवर ingredients, you can bond over some cooking, baking and all. So this has helped students like him. दिस इज माय फेवरेट, कि आप कहीं पर भी, अब हमारी जो पॉपुलेशन है, अभी हम यंगेस्ट पॉपुलेशन है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इट विल बी ऑल अक्रॉस 2040, 2050, everybody will be old in the same age group of maybe 45 to 60। तो ये चीज़ें, और अगर आप आज भी नोटिस करेंगे, अगर आपने रतन टाटा का टाटा फेलोशिप देखा हो, तो वहाँ पे वो बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने सेंटर्स क्रिएट कर रखे हैं, जहाँ पे वो ऐसे ही कुकिंग, बेकिंग, सम फन एक्टिविटीज़, मे बी पुराने सॉन्ग्स पे डांस करना, और ये सब यंग फेलोज़ जाके उनके पास करते हैं। एंड दीज़ आर ऑल दी सीनियर्स, जो बुज़ुर्ग हैं, जिनके या तो बच्चे बाहर चले गए हैं, और ये पंजाब में भी आई थिंक देयर इज़ एन इश्यू, और एनी प्लेस लाइक मुंबई आल्सो हैव दिस इश्यू, और दिल्ली जैसे शहर में भी है कि जहाँ पे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, बाहर चले गए। लेकिन आप लोग एज़ अ गुड शेफ़,
आप ये मंथली एक्टिविटी अपने करिकुलम में ज़रूर डालिए कि किसी भी सीनियर केयर सेंटर में आप जाके 1 महीना उनके साथ, 1 महीने में 1 दिन उनके साथ ये सारे काम करें, ताकि उनका, सी इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग सोल टू देयर लाइफ। और कुकिंग से हम ये सब कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई culinary art therapy is something very dear to me. So when Dr. Anjana told me that you can take some session on mental health, so I said why not to combine this here. So memories, इवन मेमोरीज के साथ आपके जब इमोशंस होते हैं, चाहे आप मुस्कुरा रहे हो, इवन इफ यू क्राई, क्राइंग इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग। आप किसी अच्छी मेमोरी के उसमें भी, इफ यू आर मिसिंग योर पार्टनर, स्पेशली फॉर सीनियर दिस सिटीजन्स आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उनके लिए वो एक इमोशन को इवोक करना, उस वहां तक लाना, एक अपने आप में एक अचीवमेंट होती है, एंड दे विल रिमेंबर यू फॉर दैट। Nothing you will get out of it, maybe only the blessings, but that is what, खाना जब हम बनाते हैं तो हम इसीलिए बनाते हैं कि हमें दुआएं मिले, सिर्फ कमाने के लिए नहीं, लेकिन दुआओं के लिए भी होता है। और खाना एक ऐसी चीज है कि आप कहीं पर भी, आप चाहे 10 साल बाद, 15 साल बाद, आप खाने पे ही किसी के साथ जुड़ते हो कि अच्छा नहीं, मैं आगरा गया था, या मैं यूरोप गया था, या मैं अमेरिका गया था, कि हाँ मैंने वहाँ पे ऐसा कुछ खाना खाया था। एंड जस्ट टू शेयर विद यू, अभी रिसेंटली आई मेट समबडी, एंड तो वो अमेरिकन है, एंड शी सेड कि बटर चिकन जो है वो इंडिया, हमारी अमेरिकन की वो है। मैंने फिर उनको रिसर्च दिखाया कि ये हमारा इंडिया का वो है, इट्स ओरिजिन फ्रॉम इंडिया। सो पीपल डोंट नो, बिकॉज उनको पता है कि खाना यहाँ पे अच्छा मिलता है, वो चले जाते हैं खाने। जब आप हिस्ट्री ऐड करते हो, या आप उसके साथ उसके एक ट्रेजेक्ट्री ट्रेस करोगे, तो आपको बहुत सारी कहानियां मिलेंगी, बहुत सारे किस्से मिलेंगे, एंड दैट्स व्हाट यू कैन डू विद द ओल्ड एज होम्स वेयर यू कैन गो। एंड इफ you are going, so just send me a lot of pictures, any through Anjana ma'am, that I can share it on my website also, that this is how culinary art therapy session has worked for so many centers. So memories and cognitive stimulation, जैसे जैसे हम एज में बढ़ते जाते हैं, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज सेल्स हमारे वीक हो रहे हैं, सेल्स एज हो रहे हैं, तो हम कॉग्निटिव स्टिमुलेशन हमारा धीरे धीरे कम होता जाता है। लेकिन अगर आप फूड का अपने उसमें एक थेरेपी रखेंगे, सो देन दीज पीपल, स्पेसिफिकली जो हमारे बुजुर्ग हैं, इट विल हेल्प देम अ लॉट, एंड दिस नॉट ओनली इम्प्रूव देयर मूड, बट ऑल्सो उनका मेमोरी रिटेंशन, जैसे डेमेंशिया है, एमनीजिया है, अल्जाइमर्स है, इन सब प्रॉब्लम्स, देयर इज अ प्रॉपर रिसर्च कि इन सब थेरेपीज से, कलिनरी आर्ट थेरेपी से आप उनको एनहांस कर सकते हो, इनका मेमोरी रिटेंशन एंड ओवरऑल कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन इज एज सिंपल एज, जैसे आप लोगों को मदर, मतलब पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि एग्जाम से पहले आपने दही चीनी खाना है, तो दही चीनी क्यों खाना है? इफ एनीबडी नोज, यू कैन पुट इट इन द चैट, बट वी शुड नो कि अगर आप एक बादाम और एक काली मिर्च को मिक्स करते हो और सुबह आप ले लेते हो, तो आपकी आंखों पे आंखें अच्छी हो जाती हैं। इन सब चीज़ों का देयर इज अ साइंटिफिक रीजन फॉर दैट, एंड दिस कुड बी एडेड इनटू आर्ट थेरेपी आल्सो। सो जितना आप रिसर्च करोगे, रीड करोगे, बुक्स उसमें पढ़ोगे, तो दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस थेरेपी मोर। Okay, so I think I've spoken enough, but I would love to ask you, और ये सबसे अच्छा वो है, if you can put it in the chat, because I won't be able to see, so Anjana ma'am or Pawan ji, आप you can help me out if students are writing, so please आप मुझे उनके नाम भेज दीजिएगा, और maybe I'll give them some kind of a small gift from my side. आप ईडियम्स, आपने मुहावरे और लोकोक्तियां जो हैं वो सुनी होंगी, अब पंजाबी में भी बहुत सारी होती हैं, हिमाचल में भी बहुत सारी हैं, तो ये इंग्लिश की मैंने कुछ पिक की है, बिकॉज हमारे लिए एज अ शेफ, अगर आप शेफ बनना चाहते हो, तो यू शुड हैव इंटरनेशनल लैंग्वेज एज इंग्लिश, आपको आनी चाहिए। सो फर्स्ट वन इज अ डैश कुकी, एंड आप ये अगर इन सब के मीनिंग देखोगे, सो अ टफ कुकी, ओके, अ टफ कुकी मीन्स इट्स हार्ड टू क्रैक। जब आप कभी आप ऐसे कोई बिस्किट बना लेते हो जो बिल्कुल टूटता नहीं है, सो एंड दैट इज व्हाट इन अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हम इसको यूज करते हैं कि भाई आज आज हमारा बॉस तो बहुत वो है, ही इज वेरी टफ कुकी टू क्रैक, सो दैट्स व्हाट।
Now the next one is too many dash spoil the broth. Anyone, if you can answer, and or you can put it in chat. प्लीज Anyone? बताइए, टू मैनी डैश स्पॉइल द ब्रॉथ, क्या आंसर रहेगा आपकी तरफ से? स्टूडेंट्स जस्ट यू कैन रेज योर हैंड, कोऑर्डिनेटर्स कैन मैनेज, प्लीज कम ऑन जल्दी जल्दी जल्दी, You can put in the chat. प्लीज पुट इन द चैट. Okay. If you Center can't, coordinators. yeah. Yes, cooks Yes, Sameer. from Sudha. Okay. Too many cooks spoil the broth, right? And what does it mean? It means कि जब बहुत सारे लोग, और हिंदी में अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगी तो क्या है कि खिचड़ी पक जाती है। जब बहुत सारे लोग, एक आया नमक डाल दिया, एक आया ये डाल दिया, तो ये सब चीजें क्या करती हैं? So you have to be very careful, mindful of कि आप, and if you will see कि जितने भी हमारे मुहावरे और लोकोक्ति हैं, we call idioms and phrases, आप इसके ऊपर एक एक्टिविटी अपने सेंटर्स पे करवा सकते हैं कि how many of them know about it. This will directly take them from cooking to corporate. Now, the dash on the cake. Next one, icing. Okay. Icing. Yes, right. Yes. Yeah. Mona, Then, Mona. Yes. lovely. Food for dash. And because I've given some hints also there, if you will see those icons or the emojis. So, yeah, food for taste. Taste icing. No, the no. Okay. Thoughts by Tahil Amritsar. Food for thought. Okay. Food for thought means आपने किसी के लिए कुछ छोड़ दिया कि अच्छा ठीक है, now you should think about it more. I have given you enough, like I have given you enough on culinary art therapy. Now the food for thought is that how you're going to use it in your day-to-day life, right? Then dash the beans. It's easy one. Mashed beans. It starts from S. 10, 9. Stirring Spring. mission. No. No. 10, 9, 8. Try it. There's nothing. I'm not giving you any kind of marks here. Dash the beans. No one. Can I try? Yeah, please. Spill the beans. Yeah, spill the beans. That means somebody, you are keeping it as a secret, जैसे आपकी surprise party होती है, and somebody has spilled the beans. Now these are the actions. A tough cookie I've said, and there are so many. I just found a few for you कि आप उससे connect कर सकेंगे, and if you will use it in your day-to-day language, so you will know that okay, yes, you are learning communication in a easy way. And as a chef, as a culinary artist, जब आप अपने ही कला को आप उसमें अपनी लैंग्वेज में ले आते हो, नथिंग कैन बीट यू, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग सक्सेस इन लाइफ फॉर श्योर, राइट? So this was just for making you easy ki I was talking about therapy, but this is also therapy that you can play a game and you can put it in their exam also, that okay, yeah, today we'll have some kind of a different exam, so you can use as many idioms so that they learn, all of you can learn from here. And let's go to the last one from here. So thank you so much for having me, and let's create a culture where it's not just a day of world mental health. We are doing it every day from our side, and you have the power to do it. And you can see those green ribbons in the slide. So tomorrow you are all going to wear those, all of you. I request even the center heads also create that culture that everybody can. There should be one day in a month or in a week जहाँ पर बच्चे आपसे आके अपने मन की बात कर सके। और मन की बात मतलब उनको जो भी परेशानी है, जिस तरह के कोई भी चीज, बिकॉज एक गुरु और एक शिष्य चाहे किसी भी रिलेशन में हो, वो कोई भी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, आई कैन लर्न सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ यू. So next time when I'm visiting any of your centers, so you can teach me about baking more, that मैम आप इसको अपनी psychology में कैसे और ला सकते हो. I would be happy to do that. I'd to happy to learn from all of you. So let's do that. And now, if you have any questions, you can ask me. And learn Inka. I would request all the centers one tour of any place around the world. You should travel. I have traveled around 21 countries, and I have learned from every culture.
like then that's what I'm putting कि let's create a culture. अगर आप फूड में कुछ भी काम करना चाहते हो, you will learn a lot as an entrepreneur. अगर आपको कुछ भी बनना है तो I can give you a class on how culinary art can be a entrepreneurship as well. So you will learn a lot. So अपना जितने भी savings है उनको इतना एक बार इकट्ठा कर लो, and then you go for a small trip which could be anywhere around the world, right? So thank you so much, Chef Pawan, Dr. Anjana, and everybody at NFCI, all the centers, those who have joined. I can see lot many students sitting here. If you have any questions, you can ask me. आपका बहुत बहुत आभार डॉक्टर चेतना सरोवर मैम. सच एन एनलाइटनिंग सेशन जिसमें हर एक के साथ आई एम श्योर जुड़े हैं आप, एंड हम कोशिश करेंगे एंड जो भी आपने पॉइंट्स बताए उनको हम अपने सेंटर्स में शामिल कर सकें. So कुछ क्वेश्चंस मेरे साथ सेंटर्स ने शेयर किए हैं. We'll take it one by one, ma'am. Okay. This question is from Karnal. As a student, how we can overcome from fear of questions and tasks given by our teachers and trainers? Okay. So a simple thing is that ask many questions and practice them. That what kind of questions आप अपनी questions की line create कर सकते हैं कि हमें कैसे, जब आपको और जिस भी टॉपिक पे आप कॉन्फिडेंट हो वहां से स्टार्ट कीजिए. और ऐसा नहीं है, फॉर मी एज अ साइकोलॉजिस्ट आई बिलीव दैट एवरी स्टूडेंट हैज द पोटेंशियल. किसी ना किसी फील्ड में किसी ना किसी तरीके से अगर आपका एक पैशन है और आपकी एक एबिलिटी है, उसको कंबाइन करना होता है आपकी पर्सनल ट्रेट के साथ. तो अगर आप थोड़ा सा भी शर्माते हो या सिर्फ क्वेश्चन जैसे उसमें मतलब एक क्वेश्चन मार्क दे के आप घबरा जाते हो, what you have to do is just practice those questions again and again. Create a line of question for yourself and then start answering them also, and then आप अपने किसी भी फ्रेंड को साथ में लेके उनके साथ you can have a कि अच्छा तुम अब मुझसे ये क्वेश्चन पूछो. It's about practicing that, right? So practice the virtue. Yeah. इस साथ हम नेक्स्ट चलते हैं चंडीगढ़ की तरफ, जिसमें पूछा गया है how we can work to maintain the positive energies of food. Like a group of students with chefs are cooking chicken where a few don't like the dish, but they're still cooking but with a negative approach. How to maintain the positive energy? That's a very beautiful question, and I'll tell you about this incident where I was working with this Jain culture, where उनके लहसुन और प्याज भी उनके वहाँ पे नहीं खाया जाता. तो there were two counters. एक जगह पे लहसुन और प्याज वाला खाना था, एक जगह बिल्कुल बिना लहसुन प्याज के खाना था. तो चिकन तो आप भूल ही जाइए. ओके, बट देन आई थिंक कोई भी कल्चर, चाहे वो जैनिज्म हो या पंजाबी हो या कहीं का भी रिलीजन, कोई भी आपको ये नहीं सिखाता है disrespect to the food. Now up we have to understand, we have to tell them कि चिकन भी जो है, because it's a dish जहाँ पे climatic conditions के हिसाब से आपको वो चीज़ें खानी होती है. There may be some vegetables which are not available at those places. और अगर आप देखेंगे तो हमारे आर्मी है, जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं, वो जहाँ पे भी जाते हैं या वॉर के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे अगर उनको खाना नहीं मिलता है तो दे हैव टू ईट दैट फूड. सो आप अपने इमोशंस और अपना रिलीजियस बिलीफ स्पेशली खाने के टाइम पे उसको थोड़ा सा अलग कर दीजिए. कुक इट एज अ डिश. और आपको अगर चिकन से वो लगता है तो यू कैन वेयर योर ग्लव्स, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. But don't bring negative energy to that part, because I have seen lot of people who are working in Switzerland. They do not eat even I mean they are supposed not to kill an insect also, but they are very good chefs because chef आपका passion है. That is how it's somehow maybe you are born in the wrong religion, but religion doesn't come with a stamp on us. तो दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. चाहे आप फिश बना रहे हो, और आज के टाइम में हमें ये समझना पड़ेगा कि चिकन है या कोई भी किसी तरह का नॉन वेजिटेरियन फूड है, उसके लिए एक अलग से फार्मिंग होती है, एंड इट्स अ वेरी प्रोसेस फार्मिंग. तो आप, मैं नहीं कहती हूँ कि आपको देखना है कि उसको काटते कैसे कैसे हैं, लेकिन आप जितना भी कर रहे हैं, बट इफ यू हैव टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अ कम्युनिटी डिश जो आप लोगों को एज अ पीयर ग्रुप करना है, ग्रुप एक्टिविटी करना है, तो यू शुड ऑलवेज ब्रिंग दैट. And I have shown you there's another YouTube documentary that water has memory. ये तो मैंने अभी इसमें आपको दिखाने के लिए just to make you understand, ये एक पानी जैसी चीज जिससे हमारी पूरी बॉडी और हमारा अर्थ बना हुआ है. It is important to understand कि आप क्या इमोशन उसमें पास ऑन कर रहे हैं, and most of the dish are cooked with water. So that's what it is important. So next time if you see which you don't like,
Like I also don't like some of the smells, but I do not express them explicitly कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. And that is what humans can do. And अगर आप शेफ हैं, अगर आपको अच्छा शेफ बनना है तो ये तो आपको कंट्रोल करना सीखना ही पड़ेगा. So that's from my side. थैंक यू सो मच मैम. चलते हैं बनारस वाराणसी, जहाँ पे एक क्वेरी है कि हाउ डू वी कंट्रोल एग्रेशन इन प्रेजेंट सिनेरियो, जहाँ पे बच्चों पे काफी प्रेशर है, पेरेंट्स पे काफी स्ट्रेस है, हर तरफ से फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन भरपूर है. तो हाउ टू कंट्रोल द एग्रेशन? सी एग्रेशन जो है उसका हमें सबसे पहले रूट कॉज जानना जरूरी है कि कहाँ से आ रहा है. तो यू जस्ट टेक अ डायरी एंड स्टार्ट राइटिंग कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर एक 9 साल का बच्चा भी है या एक हस्बैंड वाइफ भी हैं, हमेशा, एंड यू कैन नोटिस इट इन योर ओन रिलेशनशिप ऑल्सो विद एनीबडी, वेदर योर सिबलिंग रिलेशन, योर स्पाउस रिलेशन और पेरेंट्स रिलेशन, कुछ चीज़ें होती हैं जो वो ऐसी बोल देते हैं जो हमें ट्रिगर कर जाती हैं. एंड दैट्स वेयर आवर एग्रेशन बिल्ड्स अप. सो फर्स्ट आपको रूट समझना है कि वो कहाँ से आ रहा है. और उसके लिए कुछ नहीं है, आप एक हफ्ते के लिए आप नोटिस कीजिए कि इस पॉइंट पे मैंने अपने पास मोबाइल है, नोट्स डाल दीजिए, उसमें नोट कीजिए कि अच्छा ये पॉइंट है जिससे मैं एग्रेशन. सुना है ना हमने, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, लेकिन कि अच्छा यू हैव टू बी अलर्ट. इट्स नॉट अबाउट कि आप जब गाड़ी में जा रहे हो या आपने कहीं देखा है, तो इट्स अबाउट द अलर्टनेस दैट ओके यू हैव टू बी अलर्ट अबाउट द अपकमिंग थिंग्स इन योर डे टू डे. सो दीज वर द वेज, इनको हम कहते हैं फोकलोर्स, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें जब सिखाया तो उन्होंने उनको एक कहानियां उनके आसपास बना दी, लेकिन उनके पीछे साइंटिफिक रीजंस हैं. एवरीथिंग, whatever superstitions we talk about, बिकॉज वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आते आते हैं. तो अगर आप देखोगे कि साधु जो होता है या जो हिमालय में जाते हैं, यू पीपल आर फार बेटर देन देम. वाई? तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है, तुम्हारे पास फेसबुक है, तुम्हारे पास ट्विटर है, तुम्हारे पास सोशल मीडिया है, एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज डिस्ट्रैक्शन यू आर स्टिल लर्निंग बेटर. उनके पास क्या है हिमालय में? कुछ भी नहीं है. सो माइंड ट्रेनिंग आपके पास जब बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो तब आपको करना है, एज आई सेड, माइंडफुलनेस. ओके, पिक अप एनी एक्सरसाइज ऑफ मेडिटेशन. मेडिटेशन में जरूरी नहीं है कि आपको गुरबानी या आपको अपना रिलीजियस उनको स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है. अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है. इट शुड बी डन. आई मीन यू शुड नो योर रूट्स. तभी आप, स्पेशली खाने में, देन यू कैन ब्रिंग द फ्लेवर फॉर श्योर. Otherwise, you can just light a candle, sit in front of it. Just जैसे पानी के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसे ही हमारे जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, पैनिक है, डिप्रेशन है, these are all related to breathing. So breathing exercise, आपको inhale, अगर inhale exhale, I think Dr. Anjana can tell you that because she is the this of meditation. It's important क्योंकि आप अपनी ब्रीदिंग से आप कंट्रोल कर सकते हो. एंड यू विल सी, लर्न फ्रॉम द डिफेंस फोर्सेस आल्सो द सेम थिंग विच अ सेंट कैन टेल. नाउ अगर हम ये कहें कि कहीं पे डिफेंस फोर्स में जो काम करते हैं उनको मारना अगर वायलेंस है, बट उनके लिए नहीं है. सो दैट माइंडफुलनेस हैज टू कम फ्रॉम हियर कि आप अपने आप को कैसे मतलब ब्रीदिंग को अगर आप कंट्रोल करना सीख गए हैं, then you will never have anxiety, you will never have stress, you will never have any kind of a panic attack, you will never have exam fear also. So breathing technique is very important to learn. Every day in the centers when you are starting your classes, start with 5 minutes meditation where you will, and it's a practice, it will automatically come into you. Uske baad aapko it's like a habit which will टर्न इनटू एक्शन फॉर यू. आप उसके बाद जब भी करेंगे तो अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे, इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर डूइंग योर वर्क ऑल्सो. सो यू कंट्रोल योर ब्रीदिंग, देन यू विल लर्न दैट. Thank you so much, ma'am. The two very interesting questions have come up. One is from Ludhiana, other is from Lucknow. So going to Ludhiana, how to educate students who are not mentally strong or get diverted easily. Second question, I think it's related. So आप एक बार अपना check करके हम करते हैं. How are we able to deal with students and children who are mentally not coped up as per society standards? As मैम आपने बात करी थी autism की. But then also teach them the standards of art of living and create behavioral impact to settle normal.
सो मेंटल, अगर आप इलनेसेस की बात करें या डिसेबिलिटीज की बात करें, बहुत बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम है. And I am not sure, I mean this is the right forum, but I can talk about that mental health. आपका एक अलग वो है कि ऑटिज्म है, आप इसमें पीपल हैव लर्निंग डिसेबिलिटी, जो कुछ बच्चे हैं जो मैथ्स नहीं कर पाते, रीडिंग राइटिंग है, या उनको सोशल स्किल्स नहीं समझ में आती हैं, और देयर कुड बी डाउन सिंड्रोम आल्सो, where the children are born with the some kind of a physical or genetic डेफिशिएंसीज. तो उन लोगों के लिए एक अलग से हमें, बिकॉज जब तक हम उनको डायग्नोस नहीं करते हैं, उनको समझते नहीं हैं, आप उसके लिए सबसे पहले लेके जाएंगे उनको साइकेट्रिस्ट के पास, अगर इफ इट्स अ यंग चाइल्ड, एंड एट एट अराउंड 9-10 years old आपको पता चल जाता है अगर बच्चे के अंदर, सी देयर आर सिंपल थिंग्स लाइक आप शू लेसेस नहीं बांध सकते हो, बटन नहीं कर सकते हो, आप नाइफ नहीं पकड़ सकते हो, आपकी स्किल्स हैं, उनको धीरे धीरे डेवलप किया जा सकता है. सो देयर इज नो नीड ऑफ लेबलिंग देम एज सच कि अच्छा ये बच्चा कमजोर है या ये बच्चा वो है. एंड आई थिंक विकास खन्ना की स्टोरी इज द बेस्ट फॉर दैट. ऑल ऑफ यू शुड वॉच दैट स्टोरी कि वो कहाँ से उठ के कहाँ पहुंचे हैं. And I really admire, and there are so many of them. There is one called Nick Jovic. Okay, he doesn't have the two hands and no legs also, it's just still thighs, and but he can swim. So, and that's what we have to understand, any genetic inability or disability can be overpowered by your mind. If you put your mind on it, you can do that. But rest of the things, it can be managed. Like autism is a management thing, you can manage those. So any disability which has comes from the genetic reasons, and people are living their life happily, it's just that we have to have the right kind of interventions for them. So as a parent you have to be alert. आप उस चीज को negligent मत कीजिए, ignore मत कीजिए. Just if you have identified, please talk to the psychiatrist first and a known one, see their qualification, and then psychologist will help you in therapies that what can be done. That's how you have to approach to any kind of this. And even if you do not have, if you have any kind of a disability, all of us have. How many of you can sing? How many of you can dance? How many of you can write with both hands? So these are all disabilities. Yes, there is a some sector, लेकिन potential हर एक के अंदर है. Everybody can live their life very happily. चाहे आप मोटे हो, पतले हो, छोटे हो, काले हो, किसी भी जेंडर के हो. Now we have to talk about the genders also in this because you do have, there are confusion about gender identities as well. So we should talk all this spectrum in mental health, all kind of education, holistic well-being of a person, because आप खाना तब अच्छा बनाएंगे जब आप खुद खुश होंगे. And for you people, especially from culinary this thing, it is important to you to know yourself, and so that you can help others also. I think that is Thank you. what I would like to Thank say. you so much, ma'am. It has been a wonderful session. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. कुछ भी पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल भी बना है आई एम पॉसिबल से. So इसी नोट के साथ I would like to hand over to our director Anshna ma'am for a thank you note, and we would like to proceed. Thank you. इस बीच में क्वेश्चन आ गया है. पहले ही क्वेश्चन आ गया है कि एक लखनऊ से है कि चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ADHD and has good practical skills but not good at theoretical skills, and we need to put them in an academic curriculum so that they become educated. So ADHD अगर आप लेटेस्ट रिसर्च देखोगे अंजना जी, तो उसमें it's not a disease kind of thing, it's not a disability. Exactly. There are certain hormones in some of us, like आप लोग, and you can identify. So it was just, we don't have to go for everything towards the west side. We have to understand our own way of living as well. तो आप उसकी एनर्जी को जितना ज़्यादा चैनलाइज करेंगे उतना ही अच्छा है. पुट हिम इन सम कुकरी एक्सरसाइज, सम काइंड ऑफ एडवेंचर एक्सरसाइज, वॉट एवर ही और शी एंजॉयज, दैट इज वॉट. एंड देयर इज अ प्रूवन रिसर्च अबाउट इट कि जैसे जैसे आपके हार्मोन बैलेंस होते चले जाते हैं, 18 साल तक आपके ADHD लोगों की बिल्कुल खत्म हो गया है ये चीज़. So there is ADHD, I don't say that, but there is no need for the medication for that until unless it is harming your, and there's no kind of a proven research कि वो बच्चा पढ़ नहीं सकता है. It's just that you have to channelize their energy. Don't let them sit at one place.
and that's what you have to talk to your school about it, that is what we need, कि आपको इस बच्चे को थोड़ा सा maybe exercise, some kind of an exercise which is very rigorous physical exercise, so that he settles down in his energy. So it's about the energy explode which happens with those ADHD children, so nothing else. थैंक यू वेरी मच. सो सबको सेशन कैसा लगा? एवरीवन, कैसा लगा सेशन? कुछ समझ में आया? से यस. कुछ समझ में आया? You can say this also, I'm okay with it. किसी को नहीं आया तो You can, कर सकता है. yeah, otherwise you can put your thumbs up or smiley or whatever emoji you like on the chat or in reaction box. Alright. तो अब आप लोग क्या करेंगे? राम हैज सम क्वेश्चन. राम कृष्ण, राम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Yeah, I think Ram Kishan has raised a hand. So yeah, please go ahead. Yeah. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. How are you? फाइन मैम, फाइन है. हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा. काफ़ी क्वालिटी स्टूडेंट्स की डेली हमारी होती हैं इसी बेस के ऊपर. Mm-hmm. तो जो सेशन था इससे ऑटोमेटिक जो क्वालिटी स्टूडेंट्स की थी वो क्लियर हो गई काफ़ी अच्छी. तो थैंक यू वेरी मच मैम. Okay. My pleasure, sir. थैंक यू. थैंक यू राम. तो इसके अंदर में आज अभी जब आप लोग अपना प्रैक्टिकल या थ्योरी क्लास करने के लिए जाएंगे तो आज माइंडफुलनेस के साथ में एक बार करिएगा क्लास को. अच्छे तरीके से आराम से समझिएगा हर एक कॉन्सेप्ट को. आज की जो सेशन है इसको यूटिलाइज करिएगा. जब आप यूटिलाइज करेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि सेशन का हमारे ऊपर क्या असर हुआ. राइट. तो असर दिखाने के लिए पहले काम करना पड़ेगा. तो एवरीवन हैज टू वर्क ऑन दैट. और कल सब लोग जो भी आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं या जो भी आप लोगों को बोला गया है करने के लिए, आई होप सब लोग करेंगे उस चीज को. राइट. क्योंकि मेंटल हेल्थ का जरूरत सबको कहीं ना कहीं पर जरूरत पड़ ही जाता है. किसी ना किसी दौराहे पे आके खड़े हो जाते हैं आप लोग और आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है. तो यू कैन ऑल्सो कंसल्ट और आप कर सकते हैं इन चीज़ों को आगे और अपने आप में अडेप्ट करिए चीज़ों को एंड देन करते चले जाइए. राइट. तो अब अभी जाकर सब लोग क्लास के अंदर करने वाले हैं. सभी लोग करने वाले हैं. सारे शेफ्स, हमारे जितने भी शेफ्स बैठे हुए हैं यहाँ पर एकेडमिक ग्रुप के, सब लोग आज बच्चों के साथ में ऐसा ही करवाइएगा कि बच्चे शुड एंजॉय एंड अच्छे एरोमास एंड अच्छी चीज़ों के बारे में जानकारी करें. राइट. थैंक यू वेरी मच चेतना फॉर बीइंग हियर. बहुत ही अच्छा सेशन था. आई होप सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करके आपके पास में वापस आएंगे कुछ नया लर्न करने के लिए, बिकॉज यू हैव एम्पल ऑफ थिंग्स टू टीच देम. जो आज की जनरेशन है इनको क्या क्या होना चाहिए, इनफैक्ट सबको ही जरूरत है. तो एवरीवन शुड लर्न फ्रॉम. Right? Thank you very much. Thank you. And before we close, can we do one exercise? Yeah, please. Sitting. You want to stand? Those I can see, or you want to sit and do it? सब लोग खड़े होके करना चाह रहे हैं, बैठ के करना चाह रहे हैं? जो लोग ऐसे बैठे हुए हैं ना, प्लीज अपने हाथ जरा एकदम ऐसे कर लीजिए. जो थक गए होंगे बैठे बैठे तो इसीलिए हम खड़े हो सकते हैं. So all of you can stand. हाँ, सब खड़े हो जाओ. everyone. If you are alone in the room, you can do it yourself, and otherwise you have to do it with your friends who are sitting there. All of you can stand, stretch yourself like this, take your hands up, and on your heels just pull yourself like this on, जैसे आप स्काई को वो करने जा रहे हैं, टच करने जा रहे हैं, right? It's called Tadasana. Now what you have to do, how many of you know how to make chapatis and rumali roti? All of you know? Yes, chefs of course, or maybe some homemakers. So now what you have to do is, those who are in group, okay, you have to make chapatis with your friend like this. Clap. Yeah, with your friend clap. Yes. अरे फ्रेंड्स के साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में करो. अपने साथ नहीं करना है, साथ वालों के साथ में क्लैपिंग करिए. अपने साथ में क्लैप कीजिए. ओके, कम ग्रुप ऑन. क्लैपिंग. या ग्रुप क्लैपिंग और या चपाती बना रहे हैं आप, और आप वरना आप अकेले चपाती ही बना सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव लॉट ऑफ फन. Mental health is not about illnesses. Mental health is all about positive psychology. So God bless you all.
Thank you very much. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, Anjana ma'am, for honoring us with distinguished Dr. Chetna Sabharwal ji. So thank you so much. With the learning moving ahead, have a nice day, everyone. Bye. God bless you. Have a good Bye. day. Thank you. And happy World Mental Health Day to all. Wear a green ribbon and Thank don't you. lose. Yeah. Thank you.